So we know that the world awaits renaissance. This everyone feels. और दुनिया एक पुनर्जागरण की प्रतीक्षा में है. And the discussion is hosted by Universal Proudest Intellectual Federation, UPIF. And topic of the open session discussion is, जो आज के सार्वजनिक चर्चा का जो विषय है वो है रीशेपिंग द वर्ल्ड, हाउ टू मोबिलाइज यूथ्स फॉर सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी. दुनिया का पुनः निर्माण सेवा और आध्यात्मिकता के लिए युवाओं को कैसे प्रेरित करें. तो इस संदर्भ में दिस थीम इनवाइट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ to explore strategies, ideas, and actionable steps to inspire and engage the youth in meaningful service and spiritual practices. It aims to address the pressing needs for a balanced approach where the energy and dynamism of the younger generation are directed towards creating a compassionate, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. यह विषय सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करता है कि वे उन रणनीतियों पर विचार करें और ठोस कदमों पर चर्चा करें जो युवाओं को सार्थक सेवा और आध्यात्मोन्मुख जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. इसका उद्देश्य यह समझना है कि कैसे युवाओं की ऊर्जा और उत्साह को एक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जा सकता है. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस ओपन सेशन. एंड वी नो दैट द वर्ल्ड इज एट क्रॉस रोड्स एंड वी ऑल witness it today. We face crisis on multiple fronts, whether it's a climate change, in spiraling out the control political system, if you take, are increasingly mad by the corruption and divisiveness, and the economic disparities continues to deepen. Culture and values, once the backbone of harmonious societies, are eroding under the weight of materialism and individualism, rather, most of the country. In such a bleak scenario, the transformative potential of youth through the twin principle of service and spirituality merges as a beacon of hope. So this pathway fosters the generation of servipras, leaders with a balanced blend of courage, compassion, and integrity, capable of guiding humanity towards bridging future. So when we talk of the role of youth, the moment we say youth, the energy automatically runs through our body. So we have seen when a new idea and technology comes forward, it is the young mind, because question comes, why we are looking at youth? So the role of youth we expect. So when any new idea or technology comes in day-to-day life we are witnessing, it is young mind that can grasp them faster. Our world needs a great change in order to move forward and progress. A new order, a new wave will have to take place of the old to remedy all the physical, social, economic, intellectual, spiritual ills of the world. It is the youth, and the youth only, who have the vigor to bring about the necessary change. They possess the resilience to adopt, innovate, and implement the vision of the new society. That is why we are looking at them. यह एक नया विचार और तकनीक यदि सामने आती है तो युवा दिमाग ही इन्हें अच्छे तरह से समझ पाते हैं. यह हम लोगों ने देखा है. तो आज जिस तरह हमारी दुनिया को आगे बढ़ाने और प्रगति करने के लिए एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है, दुनिया की सभी, चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक, हर तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए
एक नई व्यवस्था, एक नई लहर की जरूरत है जो पुराने की जगह लेनी होगी। इस नए आंदोलन के, जो रिवोल्यूशन के, या यूं कहें रिनासेंस या नवजागरण के अग्रदूत के रूप में युवा अपरिहार्य हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं। ये युवा ही हैं, और केवल युवा ही हैं जिनमें आवश्यक परिवर्तन लाने का जोश होता है, एंथुजियाज्म है। यह युवा ही है जो एक नए समाज की दृष्टि को बदलने, उसे अपनाने और लागू करने की क्षमता रखते हैं। सो इस दृष्टि के बिना, युवाओं के बिना, दुनिया दुख, अन्याय और शोषण के दलदल में फंसी रहेगी, जो हमारी वर्तमान सामाजिक स्थिति है। और यह दुनिया का युवा ही है, एवरीबडी लुक्स एट देम, जो नए विश्व व्यवस्था को, नव्य मानवता की दृष्टि लाने में मदद कर सकते हैं। सो विथ दिस स्मॉल ब्रीफिंग एंड एक्सपेक्टेशन, we hand over this forum to all of you. So thank you very much. आप में से कोई भी इन टॉपिक पे कुछ अपने विचार अवश्य रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यह वर्ष जो है 2025, आनंद मार्ग हैज टेकन इट एज अ थीम फॉर द ईयर. We want to make it a very successful theme because world needs it. Words badly needs youths if you want to change, and everyone feels the change is inevitable and is very much necessity, because we know that जीवन का लक्ष्य आत्ममुक्षार्थम, that is through spirituality, and jagat hitaya cha through service, is the aim, is the mission of every, or should be the mission of every individual. So keeping this in mind, we should place our views कि दुनिया का पुनः निर्माण, सेवा और आध्यात्मिकता के लिए युवाओं को कैसे प्रेरित करें. दिस इज द सब्जेक्ट फॉर टुडे. नमस्कार सभी हाँ को हाँ नमस्कार। जी, बोलिए बोले बाबू. नमस्कार दादा, नमस्कार प्लीज। नमस्कार। यूथ को यदि जोड़ा जाए सर्विस और आध्यात्म के द्वारा, तो उसका जो मेन है, जो हमारे यूथ जो भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, उसको हम लोग यदि सेलेक्ट करें, उसको खोजें, तो उसका सबसे अच्छा जगह जो है ना, अभी तो पूरा हम नहीं सुने क्या चीज पर डिस्कस हो रहा था, लेकिन आनंद नगर में भी जो थीम दिया गया, सेफ्टी. तो हाँ, तो हम लोग जैसे लेबर ब्यूरो जो होता है ना, ये सब जगह बहुत सारा लड़का जब फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसको पता नहीं है क्या करना है, बहुत सारा गलत अटेम्प्ट भी लेता है लोग, तो उन लोग को मोटिवेट करके अच्छी अच्छी बातें अपनी ओर से सुनाते हुए, है ना, उन लोग को क्लास अटेंड करके, स्टडी सर्कल के माध्यम से, है ना, तत्व सभा के माध्यम से, हम लोग ज्यादा नहीं, वीकली चाहे मंथली भी करें, 10-15 ऐसे करके, तो ओवरऑल देखेंगे हम लोग महीना में कम से कम 50 यूथ लोग को हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करते करते साल में देखिएगा तो 12 5 60, लगभग आपको कितना हो जाएगा, 600 के लगभग हो जाएगा। तो ये नंबर बढ़ते जाएगा यदि सब कोई ऐसे करे। और इसको बहुत देखिए, हम लोग जो भी लीफलेट, और एक है लीफलेट हम लोग जो बनाते हैं, तो हम लोग क्या है ना, बाबा इतना वास्ट आइडियोलॉजी दिए हैं, हम लोग चाहते हैं कि पूरा लीफलेट में आनंद मार्ग का जितना बाबा दिए सब एक ही चीज में उनमें डाल दें। तो बहुत सिनॉप्सिस जो बनाना हम लोग को होगा, एकदम शॉर्ट में, और जो लोग को पिंच करे, लोग आकर्षित हो, ऐसा करके हम लोग को ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। थैंक यू. क्योंकि हाँ, हर साल तो हम लोग को थीम दिया जाता है, तो इस बार जो है यूथ का है, तो सबको यदि हम लोग लग जाएं, जितने भी आनंद मार्गी भाई बंधु हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन आ जाएगा। और थैंक तो यू मेरा दादा. तो यही, हाँ, हमको मेरा तो यही बोलना है। यस, नमस्कार दादा, नमस्कार। I think Anand Marg mission is a great example. In front of the youths are coming, and they're really shaping the world in their capacity with help of service and spirituality. Yes, can I request Haranand Dada, you to speak the words? थैंक यू। मैं देख रहा था कि यूथ का जो यूनाइटेड नेशंस में डेफिनेशन है,
वो ये है कि 18 से 24 वर्षों के बीच की उम्र के बीच जो हैं लड़के और लड़कियां, बच्चे, वो यूथ की कैटेगरी में डाले गए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और सारे प्रोग्राम जो हैं यूनाइटेड नेशंस के इस एज ग्रुप को टारगेट करके चल रहे हैं। अब अगर विश्व स्तर पर देखें, जो कि आनमार्क का अप्रोच है कि वैश्विक स्तर पे काम हो रहा है अलग अलग देशों में, तो सबसे अधिक आबादी जो है इस कैटेगरी में 18 से 24 वर्ष के बीच की हिंदुस्तान में है। अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री are in this age group of 18 to 24. And if we extend this age to up to 35, 70% of the population would be covered in this. तो जैसे कि 2023 के अंत में इस देश की आबादी लगभग 1 अरब 43 करोड़ के आसपास आंकी गई है। तो उस हिसाब से आप समझ लें कि आज के डेट में 50% का मतलब हुआ करीब 70 करोड़ जो यूथ हैं वो इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। खैर, परिभाषाएं अपनी जगह पे हैं। अब जरा सा अगर ये देखें कि यूथ के पावर को, यूथ की प्रतिभा को जो किस तरह भी यूज किया जा रहा है। एक तो उनके सामने जो बेरोजगारी की समस्या है जिसकी ओर इशारा किया सुधीर दादा ने, उसके चलते हर जगह कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। अभी बिहार में आपने देखा, उसके कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट को लेकर हुआ, उसके कुछ महीने पहले जयपुर में हुआ। तो उसके पहले वो नीट की कंट्रोवर्सी सबको पता है कि किस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा। ये सारे जो मैटर्स हैं वो यूथ से जुड़े हुए हैं और मुख्य मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अब प्रश्न यह है कि इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, how do we divert or channelize their minds towards service and spirituality? It's a big challenge. It's not a small challenge, because जिसके सामने रोजी रोटी का सवाल है वो वो अपनी सेवा करेगा या दूसरों की सेवा करेगा, पहला प्रश्न ये है। तो इसलिए ये तो सबसे अहम बात है कि ये तभी हो पाएगा जब when everybody is guaranteed employment, which is envisaged in the scheme of things under the Proutist philosophy. That is a different issue. अब ये देखें कि यूथ को किस तरह हम लोग सर्विस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो एनर्जी और टाइम के दो मेजर रिसोर्स हैं सबके पास है, यूथ के पास ज्यादा है क्योंकि उनके पास एनर्जी, उनकी पोटेंशियल ज्यादा है, उनकी जो वाइटल एनर्जी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एज ग्रुप्स। नाउ फर्स्ट इज दे हैव टू बी मोटिवेटेड के समय निकालें वो, क्योंकि जो मेरा अध्ययन है, मैं कई प्रकार से इस उम्र की के लोगों से जुड़ा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि ये इनकी पूरी सोच अभी जो है वो जॉब ओरिएंटेड है कि किस तरह हमें अच्छा जॉब मिले, हम अच्छी सर्विस कर लें, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और उसके बाहर की सोच नहीं है। और पूरा समय उनका उसी में जा रहा है। दे आर कंप्लीटली एनग्रॉस्ड एंड एंगेज्ड इन परसूट ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, आप जो भी कह लें। तो पहली बात, द फर्स्ट चैलेंज दैट वी हैव टू फेस is that they have to be motivated to take out time and conserve some energy for these two works. अब इसमें मोटिवेशन का क्या एंगल है? पहली बात तो ये है कि जैसे सर्विस में हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एमर्ट, उसमें काफी युवा पीढ़ी के लोग पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि वी कैन शो देम स्मॉल वीडियो क्लिप्स एंड स्मॉल फिल्म्स कि किस तरह हमारे यूथ ने अलग अलग जगहों में, कहीं स्कूल, कहीं होम्स, कहीं साइक्लोन्स, कहीं अर्थक्वेक्स, कई प्रकार का काम हो रहा है। आप सभी जानते हैं
तो इससे भी मोटिवेशन मिलता है कि और लोग भी लगे हुए हैं। जब आदमी ये देखता है, सोचता है युवा मन कि इस काम में और भी युवा पीढ़ी के लोग लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली मोटिवेशन होता है। दैट इज हाउ इन द इन्फेक्शन स्प्रेड्स, इन्फेक्शन इन ए गुड सेंस। तो पहली बात तो ये कि हमारे जो अच्छे काम हैं उनको हाईलाइट करने की आवश्यकता है। और जो पैम्फलेट बनाने की बात सुधीर दादा ने कही, उस संबंध में मेरी चर्चा पीआरएस दादा से हो चुकी है। वो पैम्फलेट बना रहे हैं ये लोग, ताकि हम लोग उसको उसमें सारी चीजों को समाहित करके वी कैन प्रोपगेट एंड एडुकेट द यूथ इन दैट डायरेक्शन। जहां तक स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, तो ये बहुत क्लियर है कि अभी जो यूथ की एनर्जी है डिसिपेटेड है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और थिंकिंग इज वेरी डिस्कर्सिव। दे थिंक ऑन इन सो मेनी डायमेंशंस। जॉब का डायमेंशन तो है ही, पर इसके अलावा सोशल मीडिया का एक मेजर डायमेंशन है, पीयर ग्रुप का एक डायमेंशन है। तो जो एक यूथ का माइंड है, इस पीढ़ी का 18 से 24 वर्ष के बीच की जो मानसिकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ और मैंने देखा है, कि या तो पीयर ग्रुप की थिंकिंग में जुड़े हैं कि हमारे दोस्त, हमारा सर्कल, या थोड़ा बड़ा अगर कर दें रेडियस, तो सोशल मीडिया में जुड़े हैं। और लगभग सारे लोग जुड़े हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड सोशल मीडिया डज नॉट हिट द टाइम शेड्यूल्स एडवर्सली। हो ये रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम की बहुत गहरी समस्या खड़ी हो गई है। मैं ये देख रहा हूं कि उनको ये पता ही नहीं है कि कितना समय हम किस काम में लगाएं, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। पेरेंट्स का जो हिसाब किताब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने सब कुछ बच्चों पे छोड़ दिया है, कि ऐसे ही बच्चे सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, और बच्चों को भी इस बात, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड फॉर दिस एज ग्रुप ऑफ यूथ, आई शुड यूज अ बेटर वर्ड, कि जो युवा हैं उन पर हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने सब कुछ छोड़ दिया है कि भाई दे आर ऑल सोलोमोन्स ऑफ विजडम। तो इनको सारा ज्ञान प्राप्त है। लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि जो ज्ञान सोशल मीडिया और यूट्यूब और तमाम गूगल के सर्च इंजन से मिल सकता है, और जीवन के अनुभव का जो ज्ञान है, वो दो अलग ज्ञान के आयाम है। तो ये जिम्मेदारी जो है पेरेंट्स ने relinquish कर दिया। they have relinquished their duty, which Baba has repeatedly emphasized, कि parental duty has to be there. And they have to continuously guide. A parent is like a teacher. It has to, they have to go on educating, teaching, instructing, advising, and guiding the children, the youth. तो एक ये बात हो गई। तो स्पिरिचुअलिटी का जो है, पहला तो ये है कि टाइम का इशू फंसा हुआ है। तो टाइम स्लॉट निकाल करके इसमें समय देना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि इससे आपके आपकी जो डिस्कर्सिव थिंकिंग है, मतलब जो मल्टी डायरेक्शनल आपकी थिंकिंग चल रही है, कि दिन भर में आपके माइंड का जो रडार, माइंड के रडार पे न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। So you have to stay focused, and for this one has to go for meditation, which will definitely improve their concentration, their focus on work, it will conserve their energy for better work. Even पढ़ाई में भी अगर concentration के लिए जरूरी है कि माइंड डिस्कर्सिव थिंकिंग लेकर के ना हो, कि पता चला कि आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और दिमाग कहीं और जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि ये बताना जरूरी है यूथ को कि आप समय निकालें इन दो कामों के लिए, और इसके लिए और लोग भी जो इसमें लगे हुए हैं उनको मोटिवेट करें। क्योंकि मैंने देखा है, आप लोग भी जानते हैं, कि बहुत से एनजीओ इस अच्छे काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से एनजीओ शहर में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा वो बेटा था, तो वो भी वीकेंड्स में जाकर के उसमें जो गलियों में और इस सब बच्चों को पढ़ाता था, और छोटे मोटे काम करता था, कागज पेंसिल कलम देने का। तो इस तरह यूथ और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आज मैंने बच्चों को पढ़ाया, आज मैंने उनको बैठा के कुछ समझाया।
दे फील वेरी हैप्पी। कोई भी अच्छा काम करने पर आदमी को खुशी होती है। ये तो आदमी में एक इनबिल्ट इंस्टिंक्ट है टुवर्ड्स बेनेवलेंस, कि शुभ काम करने की जो आंतरिक एक जो का रुझान है, प्रतिभा है, वो हर एक मनुष्य में है, उसको जगाना है। और इस तरह समय के जो बार बार कही गई है बात श्री श्याम मूर्ति जी के द्वारा, कि समय का अपचय मत करो, टाइम इज वेरी लिमिटेड, लाइफ इज हैविंग अ लिमिटेड स्पैन। तो उसी स्पैन में समय निकाल के इन दोनों कामों को करना पड़ेगा। और वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू स्मॉल reels, small videos. We have to be in touch with this generation. So that's what I wanted to submit. क्योंकि फाइनली आई वुड से कि यूथ जो हैं वो ड्रीमर्स हैं, वो एक्सप्लोरर्स हैं, एडवेंचरर्स हैं, और रिस्क टेकिंग वो सीखना जल्दी सीख जाते हैं बड़ों की तुलना में। वो रिस्क ले सकते हैं, तो कोई काम करने की हिम्मत वो रखते हैं, करेज। तो ये करेज जो है ये 18-24 के बीच अद्भुत होता है। और आप किसी भी देश के इतिहास को देख लें, अपनी आजादी के लड़ाई को देख लें, तो जिन लोगों ने लड़ाई, आजादी की लड़ाई में यहाँ तक की जान दे दी, भगत सिंह और जिनका भी आप देख लीजिए, उनकी उम्र जरा आप देखिएगा, तो सब वही 18 से 24 के बीच वाले हैं। चाहे खुदीराम बोस हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या भगत सिंह हो, सब इसी उम्र में इस लड़ाई में कूदे और सब कुछ छोड़ के कूदे। ऐसा नहीं कि उनके पास और विकल्प नहीं था। दे हैड मेनी ऑप्शंस। सिविल सर्विस छोड़ के सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए। तो इन लोगों ने, बहुत लोगों ने ऐसा काम किया। तो ये अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं जो सामने से गुजरे हैं रिसेंट हिस्ट्री का, हम अब सुकरात की बात छोड़ दें और सिकंदर की, तो रिसेंट हिस्ट्री डेफिनेटली कैन इंस्पायर कि उसमें कितने साइंटिस्ट निकल गए यंग एज में। So these are the things we have to keep in mind, I think, and we have to definitely get in touch with youth through different modes of social media and print media and other things. तो यही मुझे, मेरे कुछ यही विचार थे। थैंक यू। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। आपने भी, सुधीर दादा ने भी, जो मुख्य मुद्दा है दैट इज ट्रू कि देयर माइंड इज वेरी मच बॉग्ड विद जॉब, कि हमारा जॉब कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज देयर इन सोसाइटी which everybody feels. That is one point. And the second point what you told is, in spite, time is a big factor, energy is a big factor. So most of the time and energy the youths are, I mean, you rightly said कि we are not, it's not the blame. The media का attraction ऐसा है कि most of the time जो है मनुष्य का सोशल मीडिया में जाता है। और भी तो आजकल एक नया वर्ड चला है, द स्क्रॉलिंग ह्यूमन। वो स्क्रॉल करते करते कितने घंटे बीत जाते हैं और पता नहीं चलता है। सो अवर फर्स्ट अटेम्प्ट इज, यू राइटली सेड एट दिस स्टेज, दैट वी हैव टू मोटिवेट देम सो दैट they feel the purpose of life. I mean, there is another way also to make certain programs to visit the youth. So you rightly said that between the age of 18 and 24, I mean, college and universities, we should visit. And we have to tell them कि what is, I mean, what is the purpose of life? I mean, ये बहुत important है. We have to define the human life because इतना डिस्ट्रैक्टेड है सोसाइटी आज। यू राइटली सेड कि बेचारे दिन भर करते हैं बट उनको क्या मिलता है? आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गेट एनीथिंग सब्सटेंशियल व्हिच विल हेल्प इन देयर लाइफ। आई मीन मोस्टली इट इज अ टाइम पास। आई मस्ट से दैट नॉलेज, यदि उसको हम नॉलेज कहते हैं, देन ऑब्वियसली नॉलेज इज अ क्लिक अवे, बट आई डोंट नो, इट रिक्वायर्स विजडम कि हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, जानना चाहिए पहले हमको हम क्या उसमें ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज तो उसमें खो जाएंगे, इज अ समंदर, एंड दैट इज व्हाट दादा वाज पॉइंटिंग आउट। तो मेरे मन में आ रहा था दादा कि आई थिंक यू राइटली सेड कि हर आदमी में, बाबा कहते हैं, इस्तांबुल का उनका एक लेक्चर है, बाबा कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है टू एक्सपैंड, दैट इज वन। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम रिमेंबरिंग, बाबा यूज्ड टू से कि हर आदमी कुछ नोबल काम करना चाहता है, हर आदमी कुछ ऐसा करना चाहता है कि दुनिया उसे याद रखे, चाहे वो कोई भी हो। सो ये दीज आर द ह्यूमन टेंडेंसीज, ये ह्यूमन की बड़ी प्राइमरी चीज है। इसलिए इफ वी मोटिवेट द यूथ्स, यू राइटली सेड वी आर लुकिंग एट यूथ्स ओनली बिकॉज इतिहास है कि यूथ्स ने ही दुनिया को बदला है, यूथ्स ने ही परिवर्तन लाया है, और उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता है।
And fortunately, India, you rightly said, is having almost 50% of the population in this range today. So yeah, we have a strength, but we have to utilize the strength. To utilize that strength, I think people should make a plan to what they need actually, and what makes them motivated, what makes them here first of all. Then only we can put our point in their mind and motivate them towards the future of the entire globe. That's the future. If the future is in their hand only, I must say that youths are the future of everyone. So this was coming in mind, and Dada, thank you, rightly summarize that. So हमको लगता है कि हमारे यहाँ एक वरिष्ठ दादा प्रद्युमन नारायण दादाजी मिल जुड़े हुए हैं। नमस्कार दादाजी। थैंक नमस्कार नमस्कार यू नमस्कार। आपको जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद दादा। मैं आप आपकी दें तो आपको आपकी बहुत एक्सपीरियंस है बच्चों आपकी आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता ना। ये तो आपका बड़कपन है दादा। आपका आदेश हुआ तो मुझे आना ही पड़ा। नहीं दादा, आदेश कैसे हो सकता है। आपका प्रेजेंस हम लोग के लिए बहुत रहता है। तो दादा इस सब्जेक्ट पे थोड़ा हम लोग को गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच। महर्षि वेद व्यास का हाँ एक बड़ा ही अर्थपूर्ण उनकी उक्ति है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। यह जो सेवा है, सेवा धर्म इतना गहन है और इसका विस्तार इतना है कि जब तक सेवा को ठीक से समझा नहीं जाए तब तक सेवा ठीक से हो नहीं सकती। और दूसरी बात है कि सेवा को ठीक से यदि हमने समझ लिया तो उस सेवा का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरों पर पड़ेगा। सेवा हर क्षेत्र में उसकी जरूरत है, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो। एक यक्ष प्रश्न जो आज भी अनुत्तरित है, जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था किम आश्चर्यम, तो उस उत्तर को अभी तक समझा तो गया है लेकिन अनुभव नहीं किया गया कि सब मनुष्य मरता है लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, और सब मर जाएगा लेकिन हम जीवित रहेंगे। तो यह एक इतना बड़ा भ्रम है कि इस भ्रम को तोड़ना सामान्य मनुष्य के लिए या सामान्य प्रचारक के लिए संभव नहीं है। और इस मामले में यदि मैं कहूं तो सबसे बड़े सेवक गुरु ही होते हैं। गुरु से बड़ा सेवक दूसरा हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने दुख की अनुभूति की और ऐशो आराम सुख, पत्नी, प्यारे से बच्चे को छोड़कर बुद्ध राजमहल से निकल गए। ऐसी कौन सी पीड़ा थी बुद्ध के मन में जिस पीड़ा ने उनको संसार छोड़ने पर बाध्य कर दिया? इस पीड़ा की अनुभूति हमें अपने युवाओं को भी करानी पड़ेगी। आप सब लोगों ने जैसा कहा, और बात भी सही है कि हमारे युवा आज बहिर्मुखी हैं, और उसका कारण भी है कि जो भौतिक आवश्यकता से वंचित है स्वाभाविक रूप में वो भौतिक सुख सुविधा की ओर जाएगा, दौड़ेगा। तो सबसे बड़ी सेवा
जो प्राथमिक स्तर पर हो सकती है वह है कि व्यवस्था में परिवर्तन करके एक ऐसी व्यवस्था सृजित की जाए इस धरती पर कि कम से कम मिनिमम एसेंशियलिटी से लोग वंचित न रहे, और उसके बाद ही आगे की बात की जा सकती है। बात गंभीर भी है और आवश्यक भी है, और ऐसी बात नहीं है कि आज के जो बहिर्मुखी युवा हैं उनको अंतर्मुखी नहीं बनाया जा सकता है। जरूर बनाया जा सकता है और बनते भी हैं, लेकिन बुद्धि के साथ हृदय की संवेदना भी रहनी चाहिए जब उनके साथ बातचीत हो, क्योंकि सेवा के साथ करुणा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई, और यदि सेवक के मन में करुणा नहीं हो तो वह सेवा कभी फलीभूत नहीं होती है। इसीलिए सेवा के साथ करुणा हो तो निश्चित रूप से जो भी बहिर्मुखी युवा हैं वे जरूर अंतर्मुखी हो, क्योंकि उनके पास भी बुद्धि है, उनके पास भी हृदय है। लेकिन जो एक आवरण है भौतिकता का, उस आवरण को तोड़ना केवल तर्क से संभव नहीं है, उसमें हार्दिक संवेदना चाहिए। वे समझ सकते हैं, उनके पास दिमाग है, उनके पास बुद्धि है, क्योंकि यह ज्ञान का युग चल रहा है। ज्ञान युग में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें भी बुद्धि का संचार आ रहा है। वे भी समझ सकते हैं कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा शत्रु है, और हम किस पथ पर चलें, यह बुद्धि और यह ज्ञान उनमें भी है। केवल थोड़ा सा कूदने की आवश्यकता है। तो बाबा ने एक महान दायित्व आनंद मार्ग संस्था को दिया है, और हम लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो यह महान उत्तरदायित्व के उत्तराधिकारी तो हम लोग ही हैं। इसीलिए हम लोगों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से सेवा धर्म में दीक्षित होकर दूसरों को अपनी सेवा दें। तो इसके लिए पहले स्वयं की तैयारी करनी पड़ेगी, और यदि हम स्वयं तैयार हैं तो कोई वजह नहीं है कि हमारी सेवा से दूसरे प्रभावित नहीं हो। निश्चित रूप से वो होंगे, और हमारा प्रचार तो इसी तरह से चल रहा है। देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, जिनमें श्रद्धा है वे आ रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती यदि हम किसी को चाहें कि वे सतपथ पर चले तो वह तो संभव नहीं है। दूसरे को चिढ़ाकर हम चाहेंगे कि वे सतपथ पर आवे तो यह संभव नहीं। बाबा ने तो धर्म देशना में ही कहा है कि दूसरे के विश्वास को आहत करने का अर्थ है कि तुमने वह चोट आनंद मार्ग पर की है। सोचिए कितना बड़ा आदर्श है कि पृथ्वी पर पहली बार यह धर्म देशना दी जा रही है कि तुमने यदि किसी दूसरे के विश्वास पर आघात किया तो वह आघात आनंद मार्ग पर मानी जाएगी। तो इन बातों की गूढ़ता को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और लोग आध्यात्मिकता की तरफ तो स्वाभाविक रूप से जा रहे हैं। इंटेलेक्ट स्वाभाविक रूप में इंट्यूशन की ओर बढ़ रहा है। हमें इसको सहारा देते जाना है, सहारा देते जाना है। तो निश्चित रूप से आज के बहिर्मुखी युवा भी
अंतर्मुख होंगे और आध्यात्म के महत्व को समझेंगे। नमस्कार। धन्यवाद दादाजी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया से सेवा को एक्सप्लेन किया, दैट वाज वंडरफुल। और आपके मुख से तो सुनने से मोटिवेशन भी मिलता है। यू राइटली सेड कि वेद व्यास ने जो एग्जाम्पल है वो इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और जो दूसरा एग्जाम्पल जो बुद्ध का है, वो भावना लोगों में जगानी होगी कि ऐसी क्या चीज थी जो बुद्ध ने अपने बच्चे को छोड़ करके और चले गए साधना के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पे इतने दुखित हुए। सबसे ज्यादा आपके आपकी बातों से जो हम लोगों को सीखने को मिलता है कि सेवा के साथ यदि करुणा में यदि कमी हो तो वह फलीभूत नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दिस इज वेरी लर्निंग। एंड राइटली सेड कि यदि बच्चों को या यूथ्स को सही डायरेक्शन में यदि गाइडेंस दिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि वो अंतर्मुखी ना हो, क्योंकि बिना अंतर्मुखी हुए, अगेन मेडिटेशन विदाउट गोइंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सर्विस नहीं हो सकती है। एटलीस्ट वो दिखावे की सर्विस हो सकती है एंड सेल्फलेस सर्विस नहीं हो सकती। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। और कोई यदि सब्जेक्ट पे आज बोलना चाहेंगे तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा। नो इट्स नॉट। मैं कुछ बोलूँ दादाजी? हाँ दादा, व्हाई नॉट, थैंक यू सो मच भरत दा। सबको बोलिए। नमस्कार। नमस्कार दादा। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे आनंद दादा ने, हमारे राजेंद्र दादा ने, प्रद्युमन दादा ने बहुत अच्छी बात कही है जो सीखने लायक है। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे युवक बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ समझते हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हमें उन्हें मोटिवेट तो करना ही है, और मोटिवेट कैसे करना है, ये हमारे ख्याल से हमारे ऋषियों ने भी ये बात कही है कि हर एक मनुष्य को कर्म योग में, ज्ञान योग में तथा भक्ति योग रहना चाहिए। एक पल भी बिना गंवाए या तो उसको कर्म योग में रहना है, या फिर उसको ज्ञान योग में रहना है, या फिर उसको भक्ति योग में रहना है। अगर यदि कर्म कर रहा है तो वो भी एक योग है, और अगर कर्म नहीं कर पा रहा है तो ज्ञान योग में रहना चाहिए। कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कुछ है, टाइम मिलता है, तो उसको भक्ति योग में रहना चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में रहना चाहिए। तो इसके अलावा कर्म, ज्ञान और भक्ति के अलावा उसको एक पल भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हमारा सारे आनंद मार्गियों का ये कर्तव्य है कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं उनको हम इस तरह से मोटिवेट करें कि आपको कर्म के द्वारा आपका जो काम है, जो अभी जो आप जिस उम्र में हैं, जिस स्थिति में हैं, जो आपका कर्तव्य है, पहले उसको करो। आप कर्म करो। अगर मान लीजिए नौकरी मिल रही है, अगर कर्म करेगा कोई और ज्ञान में भी रहेगा और भक्ति में भी रहेगा, तो उसको नौकरी की बहुत चिंता नहीं रहेगी। नौकरी तो उसको मिलनी ही मिलनी है। नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ मतलब ये है कि उसको इन तीनों में रहना ही होगा। अगर ये तीनों में रहेगा, एक को छोड़ करके दूसरे में जाए, दूसरे में फिर भक्ति में जाए। जैसे कहा गया है ना कि एक गांव में अगर स्त्रियां जाती हैं, मटका होता है सर पे रखी रहती हैं, वो पानी भरने जाती हैं। पानी भर के जब आती हैं तो पानी भरा रहता है, तो उनका ध्यान उसी पे रहता है। आपस में कितनी भी बात करें, कुछ भी करें, लेकिन उनका ध्यान हमेशा मटके पे रहता है कि कहीं मटका हमारा गिर न जाए। इसीलिए हमारे युवा वर्ग को ये समझाना होगा कि आप पिनैकिल्ड हों, आप हमेशा जो है अपने टारगेट पे नजर रखें, तो फिर आप जो है जिंदगी में अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता प्राप्त करेंगे तो आपके मन में जरूर ये बात आएगी
कि मैं सफलता प्राप्त किया तो हम किसी दूसरे को और कैसे सफल कर सकते हैं, किस तरह से सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो अंतः मन होता है वो हमेशा जो है परमात्मा से लिंक रहता है, और परमात्मा उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें सेवा करना है। जो डाउन ट्रोडन हैं उनकी सेवा करनी है, उनको आगे लाना है। इसको किस तरह से कर सकते हैं? जैसे वॉलंटियर वर्क है। वॉलंटियर वर्क मीन्स जैसे हम क्लीनिंग ड्राइव होता है, क्लीनिंग के लिए स्वच्छता अभियान चालू कर सकते हैं। फूड ड्राइव है, उनको जो है भोजन के लिए ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के लिए जैसे बच्चे जाते हैं, बहुत से लोगों के, बहुत से युवा वर्ग में ये अंतःकरण से ये आवाज आती है कि हम बच्चों को जा करके पढ़ाएं ताकि वो जो है समाज में आगे आ सकें। तो इस तरह से ड्राइव हमें करना होगा, युवाओं को आगे लाना होगा। और इसके साथ साथ तो हमारा मार्ग, आनंद मार्ग, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में तो बहुत ही आगे है, और सर्विस में भी बहुत आगे एमआरटी ये काम कर ही रहा है। साथ में आध्यात्मिकता अगर किस युवाओं के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। वो अपने आप में किसी और उसको जरूरत नहीं रहती है, एक अपने आप को जो है बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Bharat Sharma Dada. Thank you very much. You have touched a very important point कि all the time people have to engage either in Karma Yoga or Jnana Yoga or Bhakti Yoga. But most of the time, as Dada also mentioned, that people are very much diverted towards in the search of Gyan. Unfortunately, we are entertaining ourselves. और उससे काफी क्षति हो रही है, तो इसको मैं मीडिया कह रहा हूँ इनडायरेक्टली। एनीवे, सो वी विल गो टू द कृष्ण सुंदरन दादा, एंड थैंक यू दादा फॉर रेजिंग योर हैंड्स। कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक ऑन द सब्जेक्ट? नमस्कार दादा। नमस्कार। एजी नमस्कार दादा है दादा। मेरे साथ, दादा बोलेंगे। एजी दादा है मेरे साथ में, दादा ही बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। दादाजी बोलिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार बाबा नाम केवलम। नमस्कार। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी। तो हम लोग आनंद नगर में हैं अभी। जी। धर्म महासम्मेलन अभी ताजा ताजा संपन्न हुआ है, और थीम ऑफ द ईयर को लेके आप लोगों ने जो आज चर्चा प्रारंभ की है, सब लोगों ने बुद्धिमत्तापूर्ण अपने अपने विचार को प्रकट किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि युवक अगर आज दिग्भ्रमित हैं, उनकी रुचि अगर समाज सेवा और आध्यात्मिकता के प्रति नहीं है, तो ये कहाँ कमी रह गई, इस बात को देखना होगा। तो जब हम बहुत गहराई से इस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि जो परवरिश है प्रारंभ में, वही नींव कमजोर हो जा रही है। मैं बिना किसी का नाम लिए हुए कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। कई मार्गी भाई बहनों के यहाँ ठहरने का अवसर मिलता है, और सुबह जब पांचजन्य की बात है या सामूहिक साधना की बात है, तो हमने कई ऐसे गार्जियन से जिनको कहते सुना है कि दादा बच्चे का एग्जाम है, छोड़ दीजिए। तो एग्जाम, पढ़ाई, लेकिन कहीं न कहीं इस बात की समझ नहीं है कि ये एग्जाम, ये पढ़ाई
को और बेहतर बनाने में एक जो महत्वपूर्ण चीज है अध्यात्म, इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से जो बात कहना चाह रहे हैं, इस बात को सबसे पहले तो प्रभावी तरीके से अपने अपने घरों में इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कई ऐसे महानुभावों को जानता हूं जो वर्षों से अपने पूरे 1 घंटे का कीर्तन और फिर आधे घंटे में पूरा परिवार बैठ करने में बेगूसराय के जो श्री ब्रजेश जी हैं, उनका जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार बैठता, 12, 14, 15 जो भी लोग हैं, जितने भी युवक हैं, बेटे बेटियां हैं, सेवा के प्रति वो प्रकट का एक 12 साल का बच्चा भी ये कहता है कि ये रिलीफ का काम चल रहा है, इस काम के लिए मेरे पॉकेट मनी में मैं अभी प्रौढ़ भवन में रह रहा हूं। इस प्रौढ़ भवन में 1000 सेवक की भावना है। वॉलंटियर का स्पिरिट है, वो युवाओं से लगभग गुम सा हो गया है कि काम करना है तो आदमी सोचता है कि भाई ये काम, ये सेवा। आई थिंक उनका वाईफाई कमजोर था, इज डिस्कनेक्टेड। हाँ दादा बोलिए, ठीक है। आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, अभी बोलिए दादाजी, अभी सुन पा रहे हैं। तो हम डिस्कनेक्ट हुए थे, वो पोर्शन क्या था? वो पोर्शन था कि कहाँ तक बहुत, सुन पाए थे? हाँ आपको कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्रउत में, आप बोले कि प्रउत में इतने 1000 कुछ वर्ड आप बोले, तब तक डिस्कनेक्ट हो गया। 1000 से भी अधिक लोग ठहरे हुए थे। हाँ जी। और सुबह 5 जन में जब मैं आह्वान करता था कि हम लोगों को CSS के लिए, कलेक्टिव सोशल सर्विस के लिए निकलना है, तो उसमें से निकलने वाले लोगों की संख्या मुश्किल से 10 से 12 हुआ करता था। और वो जो 10 से 12 लोगों को मैं देखा, वही लोग थे जो नियमित साधना करते हैं, जो नियमित सेवा के काम में लगे हैं। तो ये जो नियमितता और परवरिश, एक परिवेश, ये प्रारंभ से ही देना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर है कि आदमी इतना ज्यादा तमोगुनी वातावरण में रहा हो और आया है इस दुनिया में, तो उसको कुछ भा ही नहीं रहा है, अध्यात्म उसको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ज्वर के ताप से भूख चला जाता है, वैसे वो कई बार तो उसको लगता है कि अध्यात्म के ताप से उसका कुछ परेशानी हो रही है। वो समझता है कि ये समय किल हो रहा है। और तो मेरा ये मानना है और मेरा ये विचार है कि हम लोग जहां कहीं भी हैं, सबसे पहले अपने परिवार के युवक और युवतियों को, बेटे बेटियों को नियमित साधना में लगे, उनको सेवा के लिए प्रेरित करें। रोज कुछ ना कुछ काम होना चाहिए सेवा का। एक आदमी कोई भोजन कराना है, कराइए ना, उनको पता लगनी चाहिए। बाबा एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जब उपवास को एक्सप्लेन कर रहे हैं सेक्शन पॉइंट में, तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि जो सोशल आउटलुक है, तो उपवास के करने से मनुष्य इस बात को समझ पाता है कि प्यास लगने पे क्या होता है, भूख, सचमुच में भूख क्या चीज होती है।
तो बाबा के कई नियमों के मानने से भी मनुष्य समाज सेवा के प्रति अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए लोग प्रेरित करें, आगे बढ़ें। और बहुत लोग हैं दुनिया में जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कई ऐसे युवक हैं जो काम कर रहे हैं। मैं रांची में ऐसे 4-5 टीम को जानता हूं जिन बच्चों के बैकग्राउंड में कितना अध्यात्म है पता नहीं, लेकिन एक आह्वान पे 4 आदमी आके ब्लड देने, सब कोई 22 साल का बच्चा है, कोई 24 साल का बच्चा मिली। तो बोले अब कहाँ से मिली ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खून देने से अगर किसी का जीवन बच सकता है तो बचाना चाहिए। तो हमें जो इस तरह के भी बच्चे हैं जिनके मन में सेवा का भाव है, उनको अध्यात्म पे और जल्दी लाया जा सकता है, क्योंकि सेवा करने से मन पवित्र होता है और पवित्र मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। इसलिए सेवा करने के लिए हम जहां भी रहें, स्कूल में भी जाएं, कॉलेज में भी जाएं, कहीं जाएं, कोई ना कोई सेवा का प्रोजेक्ट ले लीजिए। सेवा मीन्स सिर्फ भोजन कराना ही सेवा नहीं है। आप आज के समय में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आप निकल पड़े, आपके हाथ में 10 झाड़ू, 10 चीजें पड़ी हुई है, उसको लेके निकल जाइए। आप सड़कों की सफाई कर दिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी ने कहा है कि भाई क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, तो वो ऐसे नहीं कह दिया है, लोगों ने उसको समझा है। तो किसी भी प्रकार की सेवा है, उस सेवा में हमें लगनी चाहिए, लोगों को लगाना चाहिए, युवकों को लगाना चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए। मेरा यही कहना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर चूंकि 9 वर्ष में कई लोगों से नहीं मिलना हुआ, आदरणीय हारानंद दादाजी भी यहाँ पे हैं और अन्य जितने भी लोग हैं, मैं सबको तो देख नहीं पा रहा हूँ, अभी शायद 14 या 15 लोग ही बचे हैं, 16 लोग हैं। तो जो भी लोग उपस्थित हैं, सबों को मैं हृदय की गहराई से 9 वर्ष की शुभकामना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग जहां कहीं भी रहेंगे, युवक और युवतियों को प्रेरित करने के लिए दिन रात रोज एक सोचे कि आज मैं किसी युवक को प्रेरित कर पाया क्या। एक संकल्प लीजिए, 30 दिन में 30 युवक को अगर हम प्रेरित कर पाए अपने आचरण से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने डिस्कोर्सेस से, तो माना जाएगा कि आज का दिन हमारा सफल हुआ। एक ऐसा पैरामीटर फिक्स करके हम चलें तो मुझे लगता है कि जब 31 दिसंबर, अगला 31 दिसंबर या अगला 1 जनवरी 2026 का जब आएगा, तो हमारे पास एक नई युवक युवतियों का टीम होगा, जिस टीम को लेकर हम एक सुंदर समाज, आनंद परिवार को बना पाएंगे। सबों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादाजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सेवा को बहुत नज़दीक से हम लोगों को बताया और उपवास के एग्जाम्पल देखकर तो इसलिए बाबा जो है इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें दिए हैं कि जब तक दादा प्रद्युमन दादाजी बोल रहे थे कि जब तक सेवा में करुणा ना हो तो करुणा आएगी कहाँ से, जब तक दूसरे का दर्द महसूस करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ होती रहेगी। और आपने बहुत सही बोला कि बाबा कहते हैं कि देखो विदाउट साधना सेवा भी नहीं हो सकती है, इसलिए इन दोनों का अविनाभावी संबंध है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें कोई टारगेट बना के चलना चाहिए कि हम आज एवरी डे हम कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को प्रभावित कर सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो आदमी सेवा व्रती है उसको अध्यात्म में लाना बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो पॉइंट सिखाइए खाया बोला, एक बोतल है वो लाया, इसमें 3 बार मैं अंदर कुछ कराया, थैंक यू बोला वेरी मच। 5 टक्के। और किन्हीं को कुछ मन में आ रहा है? कैन आई आस्क सृजा दीदी टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट? सृजा दी, सृजा दी, आर यू एबल टू हियर मी? थैंक यू। Oh, yes. Yeah. यस दीदी। Sorry, I could join just now. So Doesn't I matter. really, You have to give your views how we can because, contribute in this. yeah, I had to be somewhere else in the meantime. So actually, I just came to know about this program itself. Like today we are on, so I just joined. Now this is something very important that we start from the very beginning of the declaration of what is the theme of the year. So we have one full year to see what we do about it. It's absolutely great that we have started it with that theme in our mind. And my experience
on the New Year has been so, so profound. When I didn't even know that this was the theme of the year, I will just say it in short, like what has happened and how connected we are to what is to be done for the mission and what Baba expects of us, every individual, to contribute to the collective. I get an unprecedented opportunity to address a group of youth just after the DC on New Year. We had our Kirtan and then we had our DC. Then we just, I'm just told, okay, there's a Kirtan somewhere. And actually it was only a DC. But because it was told as a Kirtan, there I landed. And I find a group of children who are Margis, but have been not very sure as to how to go about it, because they've heard proud here and there because of their very different situations. We know where youth, are placed today because of their different situations and, different requirements of their education, their work requirements or family requirements. All that really places them in a very hard circumstance, that they are not really able to think of certain things. And here are those children who really want to do something because it's their energy. They want to channelize their energy, but they really don't know. And these are Margis, which I couldn't believe it was still going on in them. And I just had to open the subject. And here are those youth coming forward and saying, okay, Didi, so what should we do about it? And all I had to tell them was, okay, I knew certain things and I opened this up. And here we are going to meet tomorrow on every week, what we will do for the next 3 months. They are ready for the thing. It is about 7 students, working executives who have come forward. And that is the power of proud. Because every human being knows it is only thing is they are unable to accept because of their circumstances. But the moment, and what I really realized was, sadhana and service should go together. If you need to be established there, the desire may be there, but they really don't know it is possible for them to do sadhana, provided they do service. And provided they do service, they will get the energy or the feeling that is where happiness lies. Because we would have had our own experiences. Every child would have had its experience that when he or she shares from the childhood, the smile brings the happiness, the joy of giving. So that will remind them as to be established in service, and that energy would be channelized. And once you expose them to sadhana, they're exposed to spirituality, they touch that layer of mind, and then they see the change in them happening. These are Margis who have gone 5th lesson, 6th lesson, 1st lesson, 3rd lesson. They are at different stages, but the reaction was the very same. But they had very many questions to be answered. And it is, everybody who had their experiences, it is for us to confidently share. And what Baba has given us today is the need of the hour. And it is said, the theme is so beautiful, that transforming youth. And at the cover, which was given, because I don't really know, is it part of the DMS that the circular has come in, saying what this theme really means. Or I don't know if Rajendra Dada has put it on his personal thing, but that write-up was absolutely great. And thank you for that also, Dada, if you had put it up, or it is from it is a circular. And I also see that from Kalyan Mitran Dada, where he's circulating a thing about the theme. And that was absolutely apt.
to say that at this moment, which is the need of the youth today. And we are on the right moment, and all we have to do is tell it confidently, and there we will see who requires it and we will move forward. So this was my experience, which I wanted to really share. And when I saw this discussion start, I really appreciate that we have an opportunity today. Thank you very much. Yes. Thank you, Didi. Thank you so much. And you rightly said that without spirituality or the sadhana, service is also not possible. And I'll quote the Baba saying in Subhasit Sangrah part 21, Unity Spirit and Cosmic Spirit is explaining if one will meditate on the Supreme to become one with the Supreme by expanding its mind, and at the same time to purify one's mind, one is to render selfless service to human society. And without rendering selfless service to society, one cannot come in close proximity of the Supreme. And without rendering and without practicing meditation, one cannot render selfless service to the society. So one should remember that one's motto in life is, the mission in life is Atma Mokshartham Jagat Hitaya. So Baba has quoted in line with what you were talking. So thank you very much. Anybody else would like to say something on the subject, please? What is the urgency? Baba is saying somewhere. The third fundamental of education is that teachers and students should have a balanced mind, unaffected, unassailed by unimportant entities. And that is the unimportant entities today. We are bombarded by the social media. So we have to be very clear about how important it is. And that Baba says that it should start from the kindergarten school. Is something basic, and mission of making human beings is accomplished there. He says that if one has already become a thief or a criminal, in that case, university education for such person is of no avail. So one is to be molded in one's childhood. That is very important. So we should focus not only youths right from the student life. If one receives the fundamental of education in the formative period of one's life, one will keep oneself all right in the teeth of the greatest trials and tribulations in life, which is happening today. Baba, very important statement says the bamboo when green can be shaped or bent in any way you like. Once it is ripened, any attempt to reshape it will break it. So this is why more stress is to be laid on the students. But of course, our approach has to be psychological. And they are ready for, as Didi told, once you guide them, if you are sincere enough, it says that the vibration is such when if you are sincere in service, so they will be following you and you can make impact on them. So thank you very much. If anybody would like to say something, if not, Dada, yes. I would just like to add one point, which Yes, I Didi. think, as you have said, that, guidance. Baba has given a beautiful discourse on exemplary life, where he gives the 8 guiding principles for leading. And this is what is lacking today, And once you have it from your guru, and having realized who that guru is, then there is no doubt in you as to how to take the path. The how is explained so clearly. And I would like every youth, before they, if they have any doubts, or even, all of us to suggest that particular discourse on exemplary life to be read by every youth, be it Margi or non-Margi, it is universally applicable. So I think that would make it very clear, because Baba has given point by point how you should grow. And that will be an exemplary guidance for every youth, every Margi, every human, but for a youth, because they see it as applicable to their life, at every moment. So that's one point I want. Thank you, Didi. And you please circulate these 8 guiding principles. Yes.
So, I will circulate the discourse. yeah. May I request Acharya Krishna Sundaran Dada? Your hand is raised. You want to say something? Yes. Yes, Dadaji. Namaskar, Dadaji. Osan and Dadaji is with me, and he Okay. wants to say something. Dadaji. Okay, okay. Yes, Dada, welcome. Namaskar. Namaskar. Thank you very much. I, being a Federation Secretary, also I congratulate to you all, and particularly in your leadership, you are keeping the movement going on. So again, my many congratulations on the occasion of this New Year Day, and this topic itself is a theme in our mission, that transforming youth through service and spirituality. There was today a very interesting sharing among our senior monks and senior acharyas, that youth's role is very, very important in the sense that youths are unemployed. And there is one special topic during this seminar session, that water conservation. Through the water conservation, we can motivate the youths, particularly in the village areas, that they can also extend their helping hands for the afforestation, maximization of the plantation, I mean. That will also give them encouragement, also job, part-time maybe in the beginning, and later on government. Also we can request to the government and the authorities to extend the possible help, so that youth can be utilized for the constructive this service, and that will be a great contribution on the part of youth, and our duty of the intellectuals is to encourage them. And again, sorry, because we were very much busy during this seminar period, so, and here is some problem of the net, so I was late to share these few words. Again, with many thanks, and myself, Acharya Priyatosharan, again, thank you to everybody. Namaskaram. Namaskaram, Dada. Thank you very much. Thank you very much. You rightly said that coming seminar was for water conservation, and we can include youths in such projects. It's a very ideal project, noble project. So with few words, I would like to conclude this. As we stand at the threshold of the unprecedented change, everybody feels it. So let us place our faith in the transforming power of youth. Through their dedicated service and spiritual awakening, a new dawn of ethical leadership and universal welfare can emerge. There is no second thought in it. So we must nurture a generation of young people imbued with a flaming moral purpose. A purpose to resolute that greed, oppression, and exploitation are reduced to ashes before their inner fire of morality. The time is to act now. So thank you very much. And I would like to close this session with your permission. Thank you very much. I hope we have done the justice. Thank you so much. And we will continue on this subject with a very different ayam throughout the year. It will continue on theory, in practice also. So thank you very much. Namaskar, everyone. Namaskar. Namaskar. So I'm closing this session. Thank you.